أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب السلام عليكم ورحمة الله وبरकातुहू। आप लाए हैं यहाँ तशरीफ हम मशकूर हैं, क्या कहें हम आपसे हम किस कदर मसरूर है। हो गई हमको मुयस्सर मेज़बानी आपकी, आ गए सद मरहबा मेहरबानी आपकी। बच्चे बच्चे की ज़बां पर है कहानी आपकी, रंजो गम जितने थे दिल से अब हमारे दूर हैं। आप लाए हैं यहाँ तशरीफ हम मशकूर हैं, क्या कहें हम आपसे हम किस कदर मसरूर हैं। आ गए आप तो लगती है ज़मी भी आसमां, वरनगर कौन सुनता गमज़दों की भी ये दास्तां। सिद्क दिल से कह रहे हैं हो गए हम शादमां, ज़ख्म महरूमी के सब महके हुए काफूर हैं। आप लाए हैं यहाँ तशरीफ हम मशकूर हैं, क्या कहें हम आपसे हम किस कदर मसरूर हैं। हो हमें तूफान का डर क्यों जबकि हाफिज है खुदा, हो हमें तूफान का डर क्यों जबकि हाफिज है खुदा। शादमानी से हमारे आज दिल मामूर है, आप बुलाए हैं यहाँ तशरीफ हम मशकूर हैं, क्या कहें हम आपसे हम किस कदर मसरूर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
Honorable President, respected teachers, and our chief guests, and my dear friends. At first, I pray to Allah that Allah subhanahu wa ta'ala gave me a golden chance to say something in front of you. Dear friends, today my topic is importance of education. Dear audience, education is a thing that improves our life, and it develops our society, our country, and the world, and it opens our eyes. It opens our eyes and increase our thought and thinking. Dear audience, so education is a thing that develops the whole country, and it is a backbone of our nation. So it is very important thing in our life. So first of all, Allah subhanahu wa ta'ala revealed about education, as well as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, chapter number 96, verse number 1 to 5, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min alaq. It means read in the name of your Lord who created. And other place Allah subhanahu wa ta'ala says, fa'alam annahu la ilaha illahu. It means know that there is no Lord but Allah subhanahu wa ta'ala. This like our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam commanded to learn, to seek knowledge, as well as our last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in the holy tradition, talabul ilmi farijatun ala kulli muslim. It means seeking knowledge is a duty upon the whole mankind. Dear audience, so now we know what is the beneficial of education, what is the important, what is the valuable of the education. Dear audience, everyone knows it very well that those are educated person. Those are educated person in our society, in this world. They got much value. They got much respect and much and high level position in our society. Same thing Allah subhanahu wa ta'ala also gives him high level, high position, as well as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, chapter number 58, verse number 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. It means Allah subhanahu wa ta'ala also rise off his position. Those of you are believers and those of you are graded by education. Dear audience, same thing, his Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also commanded. That Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in the holy tradition, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. It means the best man of you who learns and teaches others. Dear audience, we can understand its value well, it's important from these verses, from this tradition. Allah subhanahu wa ta'ala and his Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam commanded its important and its value also. So dear audience, we should learn it very well, and we should understand its value and its importance also. إن الحمد لله نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. शायर कहता है, खुद को यूं सूरज बना के पेश करो, खुद को यूं सूरज बना के पेश करो, उजाले मान के लाओ ना शहनशीनों से. सम्मानित सभापति महोदय, विशेष सम्मान का अधिकारी, अतिथियों, आदरणीय शिक्षकगण, मित्र एवं सज्जनों, आज मैं आपके समक्ष जिस भाषण को लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो है दया भाव रखने का महत्व. सज्जनों, हमारा धर्म इस्लाम सदैव
अपने अनुसारियों को दया भाव रखने, एकता तथा अहिंसा, हिंसा ना करने के प्रति शिक्षा देता है एवं उसके विरुद्ध हिंसा, कुटिलता, अहंकार से हमें बाधा प्रदान करता है। हमें ये शिक्षा देता है कि जो व्यक्ति संत्रास विस्तार करता है, जो व्यक्ति हिंसा विस्तार करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो अधर्मी होता है। वो चाहे किसी भी समाज से संबंध रखता हो, चाहे वो मुस्लिम समाज से संबंध रखता हो, चाहे वो हिंदू समाज से संबंध रखता हो, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो अधर्मी होता है, वो पाखंडी होता है। महाग्रंथ अल कुरान कहता है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जो व्यक्ति किसी एक मनुष्य को कत्ल करता है, किसी एक मनुष्य का हत्या करता है, वो संपूर्ण मानव जाति का हत्या करता है, संपूर्ण मानव जाति को हत्या करने का समान अपराध करता है। इस्लाम हमें शिक्षा देता है कि जो व्यक्ति दया भाव नहीं रखता, जो व्यक्ति दया भाव नहीं रखता, वो सफल नहीं हो सकता, वो पशु की भांति होता है। संपूर्ण मानव जाति एक शरीर के समतुल्य होता है, एक शरीर के समान होता है। जिस प्रकार से शरीर के एक भाग को व्यथा होने पर संपूर्ण शरीर व्यथित होता है, उसी प्रकार से एक मानव के व्यथित होने पर संपूर्ण मानव जाति को व्यथित होना चाहिए। इस्लाम हमें यही शिक्षा देता है। इस्लाम हमें शिक्षा देता है कि किसी के दुख में उसके समीप खड़े रहना, यही मानवता है। सुख दुखे समय तत्व दया, सुख दुखे समय तत्व तत युद्धाय विजस्या नैवम पापम व्यवस्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर जो व्यक्ति दुख के समय दुखी के समीप खड़ा रहता है, वही व्यक्ति सफल काम होता है, उसी की जीवन सफल होती है। एवं जो व्यक्ति हिंसा भाव रखता है, जो व्यक्ति मानव के विरुद्ध हिंसा करता है, कुटिलता दिखाता है, जो व्यक्ति मानवता के लिए प्रेम नहीं रखता, वो व्यक्ति पशु की भांति होता है। चाहे वो कितने बड़े शिक्षित हो जाए, चाहे वो कितने बड़े विद्वान बन जाए, परंतु वो एक मूर्ख की तरह रहता है, मूर्ख की भांति होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। आज हमारे लिए बहुत खुशी और प्रसन्न की बात है कि हुकूमत बिहार के आली जनाब मुकेश सहनी साहब वज़ीर मछली पालन और पशुपालन विभाग के आप मिनिस्टर हैं। इस प्रोग्राम में हमारे बीच मौजूद हैं आली जनाब टीटू बादवाल साहब। आप बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के यहाँ के अध्यक्ष हैं किशनगंज के। जनाब आनंद मधुकर यादव साहब, जनाब रोहित दास साहब, जनाब चंदन कुमार साहब, हमारे तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के मेंबरान, हमारे टीचर्स और मेरे अज़ीज़ तलबा। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। यूँ तो हमारे बीच कई बड़े शख्सियात इस इदारे को विज़िट कर चुके हैं। सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर बिहार के वज़राए आला, चीफ मिनिस्टर्स और दीगर
बड़े बड़े वज़ीर यहाँ आ चुके हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है। लेकिन आज का दिन एक अहम इस वजह से है कि जिस तरह से मदरसे में वही आता है जो नहायत गरीब किस्म का बच्चा होता है और जिनके पास साधन नहीं होता है अच्छा पढ़ने का या किसी अच्छे स्कूल में जाने का, तो गुर्बत की हालत में कई बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और कई लोग किसी तरीक़े से कोशिश करते हैं कि हमें इस तरह के मदरसों में दाखिला मिल जाए। और जो मदरसे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के ज़कात और सदक़ात से अक्सर चला करता है। हमारे पास भी हज़ारों लोगों का प्रेशर रहता है कि हमारे बच्चे के ले लीजिए, हमारे बच्चे को ले लीजिए। हम सब लोगों को नहीं ले पाते हैं, बहुत कम तादाद में ही ले पाते हैं। तो ऐसे ही एक किस्सा आली जनाब मुकेश सहनी साहब के साथ हैं। आप जवान होने से पहले ही रोज़ी रोटी की तलाश में अपने गांव से या अपने वतन से निकल गए बम्बई के लिए। और बम्बई में जैसा कि मैं सुना कि 900 रुपया की सैलरी, माहाना सैलरी से अपना करियर शुरू किए और आज माशाल्लाह आप खरबों के मालिक हैं और बिहार सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अज़ीज़ तलबा, आपके लिए एक आइडियल हैं हमारे मंत्री जी, आपके लिए एक नमूना है कि इंसान अगर मेहनत करता है तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता है। मुझे याद है पिछले कई सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ का जो गरीब तबका है, जिस समाज से आप आते हैं, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और पहली बार इलेक्शन में आए और बहुत कामयाबी नहीं मिली और मेरे ख़्याल से यानी कई करोड़ रुपया आप खर्चा कर चुके होंगे उस इलेक्शन में, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहे, डटे रहे और मुसलसल मेहनत और कद्दोकाविश का नतीजा है कि आज माशाअल्लाह मल्लाह समाज से उनका एक बेटा बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। ये एक छोटा सा किस्सा है, अगर बयान करूं तो बहुत लंबा होगा और मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि मुनासिब हो तो बच्चों को कुछ मुख्तसर अंदाज में सुनाएं या फिर किसी वक्त जब आप दोबारा तशरीफ़ लाएं लंबा वक्त के लिए, तो आपका जो स्ट्रगल है, आप जो मेहनत किए हैं, आपका जो ये मेहनत इन जैसे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए एक नमूना है। इनको ये सुनने का मौका मिलना चाहिए। आली जनाब मुकेश जी, ये इदारा 1988 में मेरे वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल मतीन सल्फ़ी और उनके कई भाई लोग और इस इलाक़े में कई सारे उलमाए किराम, जिनमें मौलाना मुज़्ज़मिल साहब हैं, मास्टर अब्दुल रशीद साहब हैं, यूसुफ़ साहब हैं और कई पुराने असातिज़ा अभी भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इदारे में हैं। उन लोगों के ज़रिए ये अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू हुआ था और बहुत गरीबी की हालत में। ऐसा नहीं कि मैंने कोई आदमी हमको ज़कात और सदक़ात का करोड़ रुपया दिया और एक ही दिन में बिल्डिंग ठोंक दी है, ऐसा भी नहीं हुआ। ये मस्जिद के पीछे में छोटी सी जगह थी, वहाँ पर 2-4 कमरे थे और वहाँ से स्टार्टिंग हुआ। और उस वक्त में ऐसा भी वक्त गुज़रा है कि अगर दोपहर को बच्चों को खिला दिया तो रात को स्टूडेंट को क्या खिलाएंगे इसका जुगाड़ नहीं था।
इस तरह से भी इदारा गुज़रा है और सब लोग मेहनत किए, कोशिश किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इदारा कई सारे ब्रांचेस इसके हैं। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट का जहां हम बैठे हैं ये जामियतुल इमाम अल-बुखारी, जिसको हम इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी भी कहेंगे, अभी इंशाअल्लाह अनकरीब मंजर आम पे आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर माहद अल-उलूम अल-इस्लामिया के नाम से एक इदारा है जिसमें यहाँ के बच्चे प्राइमरी से लेके BA लेवल तक की पढ़ाई पढ़ते हैं। इसी के साथ साथ जामिया आयशा अल-इस्लामिया, जहाँ अभी आप वज़ीर मौसूफ़ गए थे लड़कियों को देखे, वो इदारा है। और इसके साथ साथ एक ITI कॉलेज है, तौहीद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिशियन है और मोटर मैकेनिक है, AC एंड रेफ्रिजरेशन है, वेल्डिंग है, 6 ट्रेड उसमें है। और ये किशनगंज का सबसे पहला ITI है। और यहाँ पर जब ये कायम किया गया उस वक्त मेरे वालिद साहब और जो उनके मेंबरान थे साथ में, सब लोग ये सोचे कि यहाँ के बच्चे या तो मजदूरी करते हैं या कोई अच्छा काम में ये लोग नहीं जा पाते हैं, इसलिए कि इनके पास कोई हुनर नहीं है, इनके पास कोई टेक्निक नहीं है, तो क्यों ना हम इनको कुछ टेक्निक सिखाएं, कुछ टेक्निकल चीज़ें सिखाएं जिससे इनको नौकरी मिल सके, या अपना घर के बाहर में एक ठो वेल्डिंग का गैरेज खोल दे, या किसी के यहाँ मिस्त्री हो जाए, कुछ हो जाए, खेती बाड़ी करके क्या आता है। तो ये सोच को सामने रखकर ये ITI कॉलेज कायम किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे हिंदुस्तान के बाहर में, हिंदुस्तान में बड़े बड़े जगहों पे काम कर रहे हैं। रेलवे में है, आपका जो हिंदुस्तान का जो परमाणु जहाँ एटम बम वगैरह बनता है या रहता है मिट्टी के नीचे में, उस वहाँ पर भी हमारे बच्चे टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चों को हमने बहुत दूर दूर तक पहुँचाया है और अच्छे ढंग से रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। जो आत्मनिर्भर का एक प्रोग्राम आज हुआ था, तो ये समझ लें कि किशनगंज का ये पहला इंस्टीट्यूट है ITI जो इस फील्ड में काम किया है। इसी तरीके से तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट का 2 स्कूल है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे बंगाल में वाक़, और एक यहाँ बिहार में बेलवा में 2 स्कूल है। और ये CBSE पैटर्न के स्कूल हम चला रहे हैं। इसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग सेंटर चला रहे हैं हम लोग, उसमें स्टूडेंट BA कर लेते हैं। और इसके अलावा NOIS का सेंटर हमारे यहाँ है, और कई सारे कोर्सेज हम चलाते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। पिछले साल हम बिहार सरकार की मदद से कोचिंग सेंटर चलाए, जिसमें आपका जो क्लर्क वगैरह की बहाली होती है बैंक में या सरकार के पास, उसका भी हम कोचिंग किए। इससे पहले पुलिस की बहाली में ट्रेनिंग वगैरह हुआ, उसमें हम सहयोग किए सरकार का। और इसके अलावा तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट का चैरिटेबल में बहुत सारा काम है। सैलाब के वक्त या लॉकडाउन में जो पिछला गया है, या इस तरह से जो भी ज़रूरत होती है हम लोग काम करते रहते हैं। तो ये मुख्तसर अंदाज में तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट किशनगंज में और किशनगंज के आसपास में तालीम के लिए और वेलफेयर काम के लिए यहाँ हम लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं। हम हमारे मंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि आपके डिपार्टमेंट जो मछली पालन है और क्या बोलते हैं पशुपालन, उस सिलसिले में हमारा छोटा सा काम है। हम आपको बता रहे थे कि प्रॉन की खेती हम लोग यहाँ आजमाए और बहुत अच्छा हो रहा है। उसी तरीके से एक भेट की फ़िश है, उसकी भी खेती हो रही है। ये सब चीज़ें मैंने एक रिसर्च टाइप का हम लोग यहाँ कर रहे थे और उसमें हम लोगों को कामयाबी मिली है। सरकार का इसमें ताउन रहेगा तो इसमें और हम आगे अच्छा काम कर सकते हैं। तो आज जो यहाँ पर आत्मनिर्भर प्रोग्राम में जो कुछ कहा गया है, चाय के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, लेकिन यहाँ पर चाय के अलावा अनानास की खेती बहुत अच्छी होती है, इस पर बात नहीं आई। इस पे भी बिहार सरकार को माने स्पेशल प्लानिंग की ज़रूरत है। अनानास पूरे बिहार में सिर्फ किशनगंज में उसकी पैदावार है और यहाँ सरकार उसको डेवलप करे तो अच्छा रहेगा। इसी तरीके से ड्रैगन फ्रूट का भी खेती यहाँ हो रही है, उसमें भी सरकार को चाहिए कि उसमें थोड़ा सा ध्यान दें। और जो साहब ड्रैगन फ्रूट का यहाँ शुरुआत की है, बिहार सरकार को चाहिए कि उनको अवार्ड भी दें। एक नागराज जी हैं, वहाँ ठाकुरगंज के रहने वाले हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं तो बहुत उम्र दराज, लेकिन मुझे भी खेती बाड़ी से थोड़ा सा शौक़ है, तो हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं उनके ड्रैगन फ्रूट के डेवलप के लिए और कई सारी चीज़ों के लिए।
तो ये चंद बातें थी जो मैं मुनासिब समझा कि हम आपके सामने रखें। और जनाब टीटू बादवाल साहब से और आनंद मधुकर साहब से हम 2-2 मिनट कुछ सुनना चाहेंगे। उसके बाद फिर जनाब मुकेश सहनी साहब को हम दावत देंगे इंशाअल्लाह। मंच पे आसीन माननीय मंत्री मुकेश सहनी साहब, मधुकर जी, मतीउर रहमान साहब, यूसुफ साहब और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं 1992 में चलता हूँ। मैं मतीउर रहमान साहब के वालिद, उनके कहने पर मेरे वालिद और इनके वालिद बहुत अच्छे मित्र थे। जो डॉक्टर सलाम साहब उस समय ज़िंदा थे, उनके साथ मॉर्निंग का चाय तीनों आदमी इकट्ठा वहीं पिया करते थे। मैं उस समय किशनगंज ज़िले में मार्शल आर्ट सिखाया करता था और सीखता भी था। तो मेरे चचा जान मरहूम मतीउर रहमान साहब के वालिद और मेरे वालिद के कहने पर 1 महीने तक इस तौहीद एजुकेशन सेंटर में बच्चों को मैंने मार्शल आर्ट सिखाया। और मैं 2 बजे दिन में साइकिल से, मैं अपने पानी बाग मेरा घर हुआ, वहाँ से मैं चलता था और यहाँ पहुँचता था। और यहाँ पहुँचने के बाद मतलब उस समय स्थिति ऐसी थी कि 1 महीने की जगह मुझे 15 दिन सिखाने का मौका मिला। 15 दिन मैं ऐसे ही लौट गया। उस समय बहुत सारे लोग इदारा में आया जाया करते थे, तो बच्चों का इतना बिजी शेड्यूल था कि मुझे 15 दिन ही मौका मिला सिखाने का। और उस 1 महीने के बाद मुझे 400 रुपया तनख्वाह मिला इस इदारे से। और वो 400 रुपया मैं अपनी माँ के हाथ में दिया ले जाके कि ये लो तुम्हारे बेटा का पहला कमाई। यहाँ से लगाव बहुत पुराना है, जुड़ाव बहुत पुराना है, कहानी बहुत है कहने के लिए, लेकिन लोग भ्रमित हैं। लेकिन जो इदारा में आते हैं, माननीय मंत्री जी आज हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने बच्चों की बातों को सुना, एजुकेशन के बारे में चर्चा हुई। ये सब चीज़ इंसान के दिमाग को साफ करने के लिए बहुत काफ़ी है। लोगों के दिल में भ्रम पैदा किया जाता है, गलत भावना पैदा किया जाता है। लेकिन जो है क्या कि हम लोग हमेशा से एक उलझन में पड़े रहते हैं कि वहाँ मत जाओ भूत है, कहा जाता है वहाँ मत जाओ भूत है। लेकिन आप जाइएगा, वहाँ जाके देखिएगा तो मालूम होगा वहाँ फरिश्ते बैठे हुए हैं। हमारा हिंदुस्तान कैसे मजबूत होगा, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पर है। और इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो इस वतन के लिए, इसके अमन और चैन के लिए कुर्बानी देने से कहीं बाज नहीं आएंगे। एक नया भारत, नया बिहार का आपने अनुभव हमें यहाँ पे अभी कुछ ही क्षण में आपने दिखाने का काम किया है। ये अनुभव मुझे बचपन में भी प्राप्त हुआ है। मैं आपको बताऊं कि मेरा बचपन बहुत ही अभाव में बीता। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद आप समझ सकते हैं कि बचपन आपका कितना अभाव में बीतेगा। और मेरा तकरीबन 10 साल की उम्र तक मेरी जो परवरिश हुआ उसमें 75% समय, यानी कह सकते हैं कि 10 साल में 7.5 साल मेरा, खास करके जिसको हम मुस्लिम भाई कहते हैं, अल्पसंख्यक समाज कहते हैं, इसी परिवार के बीच में मेरा बीता। और बड़ा समय, और हिंदू मुसलमान ये तो मुझे जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब समझ में आया। जब मैं बचपन में, मुझे याद है
कि 10 साल की उम्र तक मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि भारत में अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं। और मैं खाना पीना, खाना रहना सोना, हर चीज़ मैं मेरे घर के सामने में आप आएंगे कभी भी दरभंगा ज़िला में बिरौल में, तो मेरे घर के सामने में आपका एक बहुत बड़ा मोहल्ला है जो खास करके हमारे अल्पसंख्यक भाई मुस्लिम समाज के लोग वहाँ रहते हैं। और उसी आंगन में, उसी घर में खेलना कूदना रहना, अपने बचपन के हर समय वहीं पे बिताना, ज़्यादातर मुझे वहाँ पे ही मैंने समय देता था। उसके बाद मैं 18 साल की उम्र में मुंबई भाग के मैं गया अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। फिर मैं वहाँ पे बहुत ही संघर्ष किया, मेहनत किया। अपने ख़ानदान का मैं पहला लड़का हूँ कि मैं शहर गया था और 900 रुपये महीने का नौकरी मिलता है। और काफ़ी संघर्ष किया और ईमानदारी के साथ मैंने संघर्ष किया और मुझे बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी सफलता जो होता है वो मुझे प्राप्त हुआ। और मजबूती से मैं वहाँ पे काम कर रहा था। हमारे अंदर में हज़ारों लोग काम कर रहे थे, लाखों करोड़ों रुपया मैं कमा रहा था। लेकिन बाद में मैं मुड़ के जब मैं बिहार आया तो मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। तो मैंने मुंबई के ऐशो आराम की ज़िंदगी को मैंने छोड़कर मैंने फिर मुड़कर मैं अपने बिहार प्रदेश में आकर और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, उनके लिए संघर्ष करने लगा, उनके हक अधिकार की बात करने लगा। और आज लड़ाई लड़ते लड़ते आज बिहार प्रदेश में मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ और आज मैं एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा हूँ। और बिहार सरकार में आज एक हमें जवाबदेही मुझे मिला है, पशु एवं मत्स्य मंत्रालय का मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। और यहाँ पे भी 2 साल में, ऐसे तो 6 साल मैंने अपने लोगों के बीच में हमने संघर्ष किया, जबकि मैंने उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आज बिहार में मुझे एक बड़ा सम्मान के साथ आज मुझे देखते हैं बिहार के लोग। और मैं बिहार में आज एक एज ए मिनिस्टर हूँ और उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज हमारे पास पावर है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो उनकी ज़रूरत है उनको मैं पूरा करूँगा, क्योंकि भारत एक संविधान से चलता है मेरा मानना है और देश में चल भी रहा है। लेकिन यही भारत में कुछ व्यक्ति विशेष भी है और किसी के लिए अलग भी कुछ कानून है। आज जैसे हमारे मछुआरा भाई को आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पे एससी कैटेगरी में है, लेकिन बिहार में नहीं है। तो हमारी लड़ाई है कि अगर भारत एक संविधान से चलता है तो हम भारत में हर किसी का अधिकार है, वो हर किसी को अधिकार मिलना चाहिए। तो मैं ये सब के लेके मैं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी मुझे आनंद मिला आप लोगों के बीच में रहकर। और अलग अलग तरफ समय सिचुएशन के अनुकूल ज़िंदगी में ढलना पड़ता है इंसान को। और आप निश्चित तौर पे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी के लिए सबसे मोस्ट ज़रूरी है उनके एजुकेशन, उनको शिक्षा प्राप्त हो। आपके पास अगर शिक्षा नहीं प्राप्त है तो आपके पास मानो कि 2 आँख हैं, लेकिन आप सामने कुछ लिखा हुआ उसको आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपके पास शिक्षा नहीं है। वही अगर आपके शिक्षा है तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके आँख से भी ज़्यादा ज़रूरत आज आपके ज़िंदगी के लिए आपके लिए शिक्षा है। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि हमें आँख बहुत प्यारा है, लेकिन आपके आँख रहने के बावजूद भी आप कुछ पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो निश्चित तौर पे रहमान साहब बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप। और एज ए बिहार सरकार, और मैं तो एक गरीब घर में मछुआरा परिवार में जन्म लिया हूँ। मैं, लोग कहते हैं ना अपने दिल से जानो पराया दिल का हाल, मैं खुद एक गरीब परिवार में जन्म लिया हूँ और मुझे पता है कि गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद उसके बीच में कितनी कठिनाई होता है। और ये सब एहसास करके मैं मजबूती से हमेशा लड़ते रहा, जूझते रहा और इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। और हमारे सरकार से, हमसे आपको जो भी उम्मीद होगा, निश्चित तौर पे हम लोग आपस में भेंट मुलाकात हमेशा करते रहेंगे। कभी भी कोई काम हो पटना में आइए। निश्चित तौर पे हमारे सरकार के स्तर पे, हमारे स्तर पे मैं चाहूँगा कि बिहार के लिए और किशनगंज के लिए और आपके तोहिर एजुकेशन ट्रस्ट के लिए
कुछ मैं बेहतर कर पाऊँ तो निश्चित तौर पे आप हमारे बीच में आइएगा। मैं तहे दिल से तमाम ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। जाति धर्म से उठकर मैं काम करता हूँ। मैं तो कहा ना कि 10 साल के बाद मुझे हमारे पूर्वज, हमारे आसपास के लोगों ने हमें बताया कि इस धरती पर कई जाति है। उससे पहले तो मुझे पता नहीं था। तो आने वाले समय में भी मैं वही सोच लेकर मैं यहाँ तक हूँ। मुंबई जैसे शहर में हर जाति धर्म के साथ रहकर मैंने काम किया। अब मजबूती से इंसानियत के लिए मैंने मुंबई जैसे शहर में मैंने काम किया। कभी किसी ने मुझे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे हमारे साथ दोस्ती नहीं किया। एज ए मुकेश सहनी के साथ उन्होंने दोस्ती किया और मैंने भी एक व्यक्ति विशेष के नाम से मैंने उनके साथ दोस्ती किया, ना ही कि कोई धर्म के साथ। तो इस उद्देश्य से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और यही उद्देश्य के साथ मैं आने वाले समय में भी मैं चलूँगा। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तो समाज कल्याण के लिए मैं हर धर्म का सम्मान देते हुए, इंसान का सम्मान देते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। और उसमें आप लोग भी हमेशा, अभी हमारे साथी ने हिंदी पढ़ते पढ़ते उन्होंने संस्कृत का भी अच्छा स्लोगन उन्होंने दे रहा था। इतना तो संस्कृत मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन खैर आप बहुत ही अच्छा विचार रखते हैं, नेक विचार रखते हैं। लेकिन जो आपने कहा उस विचार के साथ आपको आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है। हमको आने वाले जनरेशन को भी ध्यान में रखकर हम लोगों को सोचना है। और हम हमारे प्रोफाइल में जो हमारे विभाग में पशु एवं मत्स्य मंत्रालय हैं उसके लिए भी आपने कुछ रखा है प्रॉन के लिए, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। बगल में हमारे किशनगंज में ही हमारे फिशरीज कॉलेज है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें और उसके बाद वहाँ पे हमारे डिग्री भी है फिशरीज का 4 साल का कोर्स है, आप वो भी पूरा करें। उसके लिए भी अगर मेरी हेल्प की आवश्यकता है एडमिशन का, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को एडमिशन कराएं। और आप वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करने के बाद आपको बिहार सरकार के तरफ से स्वागत होगा डायरेक्ट आपको नौकरी के लिए, क्योंकि आज की तारीख में फिशरीज को लेकर रिसर्चर को आज बिहार में अभाव है। तो आप जैसे आप एक डिग्री करते हैं वैसे आपको नौकरी मिलेगा और अच्छे स्केल पे मिलेगा। तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपया महीने का सैलरी पे आपको जॉब मिलेगा। तो इसके लिए भी आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं आप लोगों को एडमिशन कराऊंगा, वो हमारे अंदर में है। और फिशरीज़ के लेके भी हम लोग प्लान कर रहे हैं और डेयरी सेक्टर में भी बहुत काम ला रहे हैं, खास करके बिहार के युवा के लिए। तो उसमें भी हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग सरकार के तरफ से सब्सिडी दे रहे हैं और आने वाले समय में भी इसको बड़े स्केल पे हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब भी ये सरकार आपका है, ये बिहार राज्य आपका है, ये देश आपका है और आपसे सरकार चल रहा है। सरकार से ये देश और राज्य नहीं चलता है। ये देश और राज्य, ये बिहार और हिंदुस्तान के जनता के पैसे से देश और राज्य चलता है। ये हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये अधिकार आप में है। आज मैं बिहार राज्य के लिए मैं एज ए मिनिस्टर में काम कर रहा हूँ तो मुझे भी तनख्वाह मिल रहा है। मैं भी बिहार राज्य का एक एम्प्लॉय हूँ और एम्प्लॉय में किसका हूँ? 13 करोड़ बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि आपके पैसे से मुझे तनख्वाह मिलता है तो मैं आपके लिए काम करता हूँ। लेकिन परिभाषा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। हम आपके लिए काम कर रहे हैं और हमेशा काम करते रहेंगे। फिर विशेष आप लोगों से मुलाकात होगा बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और रहमान साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। टीटू वाद्रा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे ट्रस्ट के जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, साथीगण हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगा। धन्यवाद।